بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں نمبر 1 یوٹیوب چینل فرحان دل پاک۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے خبریں۔ جی بالکل، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے خبریں۔ آج ہم آپ کو مری کے حوالے سے بتائیں گے جو 2-3 دنوں میں مری میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہم سب کے دلوں میں گہری چوٹ پہنچائی ہے جس نے، تو اس موضوع کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور گورنمنٹ کے جو نقطہ نظریے پہ بھی ہم اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فرحان دل پاک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ کامنٹ کرنے سے یہ ہے کہ ہم چینل والوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، امپرومنٹ آ جاتی ہے اور آپ کا براہ راست ہم سے چینل والوں سے ایک تعلق ہوتا ہے جو کامنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ جی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو 2-4 دنوں سے یہ گہما گہمی ہو رہی ہے خبروں میں کہ مری میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر بات ہے موجودہ حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے، کچھ عوام اور کچھ حکومت۔ عوام کو چاہیے کہ کہیں پر بھی گھومنے پھرنے جائیں تو اپنے پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ ہمارے یہیں جو چھوٹے سے شہر کروڑ پکا میں جو صورتحال ہے، بارش برسات ہو جاتی ہے تو ہم تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بڑے پریشانی محسوس کرتے ہیں، جبکہ پھر مری والے سائڈ پر جا کر اور پہاڑوں میں ٹیڑھے میڑھے راستے، پھر وہاں پر برف باری، پھر کاریں آگے پیچھے، پھر ساتھ میں گرم ملبوسات نہ ہوں، یہ جو اسپیشل جوتے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں جن کی موت ہوئی ہے اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجوہات تو یہ کہ ان کو ٹریول کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹی تھی، برف کی موجودگی میں نہ گاڑی آگے نہ گاڑی پیچھے ہو نہیں رہی تھی، اور دوسری وجہ جو تھی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ تھی۔ ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ہوتی ہے جو ہم سانس جب لیتے ہیں تو آکسیجن ہم لیتے ہیں، جو ہم سانس اخراج کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کاربن مونوکسائڈ ہی جیسی ایک قسم ہے جس سے یہ ہے کہ ہم چند منٹوں میں موت کا لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو گفتگو ہے وہ ساری اس معاملے کو نقطہ نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ جو مری میں گھومنے گئے تھے، اللہ تعالیٰ جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی آسانی ان کے لیے پیدا کرے، آمین۔ آتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے لیے یہ ہے سوالیہ نشان کہ دوبارہ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان چیزوں کو مینیج نہیں کیا۔ اب دیکھیں آپ کہ اگر پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک جگہ ہے مری جو سردیوں میں برف باری کے لیے بہت مشہور ہے، گرمیوں میں بھی وہاں کا سرد اور ٹھنڈا موسم رہتا ہے، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو بہت سے لوگ جنہیں فائنینشلی طور پر تھوڑے سٹرونگ ہیں، مڈل طبقے کی بات نہیں کر رہا میں، مڈل طبقہ تو بیچارہ آٹا گھی چینی روٹی دالیں اور اپنے کپڑے کے چکروں میں ہی پورے رہتے ہیں۔ مزدور طبقہ اپنی دیہڑی چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا مڈل سے اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا بہت ہی اپر لیول کے، خیر ان کی بھی کئی کیٹیگری ہیں پاکستان میں، جبکہ انسانی حقوق سے دیکھا جائے تو غریب امیر سب ایک سے ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر 2 قانون ہیں، امیر کے لیے کچھ غریب کے لیے کچھ۔ خیر آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ جناب۔ تو جو مری کے اندر جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان میں یہ تھا کہ گاڑیاں چل رہی تھیں، شیشے بند تھے اور باہر سے کوئی آکسیجن وغیرہ میسر نہیں تھی۔ مصنوعی طور پہ بھی گاڑیوں کے اندر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کنٹری جو ہیں، بڑے ملک ہیں جہاں پر مطلب کہ بہت سی سہولتیں ہیں، ان میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ کاروں کے اندر اس طرح کے حالات ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور ساتھ میں آکسیجن عارضی طور پر لینے کی سہولت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس لیے جاں بحق ہو گئے تھے، کھانے پینے کا کوئی نہیں تھا ان کے پاس کوئی ذریعہ، اور دوسرا 27-28 گھنٹے 30-35 گھنٹے ایک ہی جگہ پر ٹھنڈ میں مسلسل بند رہنا تو اچھے بھلے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے بہانہ بن گیا۔ تو اس پہ ہماری گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ گورنمنٹ کا ہمارا جو موقف ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی 40-50 ہزار کی کیپیسٹی تھی، جب 1.25 لاکھ بندہ آ جائے گا تو یہ تو بندوں کی ناسمجھی نااہلی ہے۔ اب بندوں کے اوپر کیا بات ڈال سکتے ہیں؟
बंदे जो भी हैं सब कहते हैं कि भाई वो गए हैं तो हमारी फैमिली भी घूम फिर ले, तो इसलिए भाई अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सूरत हाल बनी है। और बहरहाल हम तो सबके लिए यही कहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इमरान खान जोर लगाते हैं कि जी अब मुल्क के अंदर सियाहत आनी चाहिए। अब भाई बाहरले मुल्क की सियाहत क्या आएगी, जब टूरिज़म की बातें इतनी होती हैं उसके ऊपर तो पाकिस्तान के टूरिज़म को ही कंट्रोल नहीं कर सकते आप। अब मरी के जो सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल पर जो देखी जा रही है उस पर पाकिस्तान का इमेज बुलंद नहीं हो रहा, डाउन हो रहा है। ये नुक्ता नज़र रखने वाले हम जैसे लोग बता सकते हैं आपको कि इससे पाकिस्तान का मोरल बुलंद नहीं हो रहा। वो बता रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उसे निमटने के लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। अब बर्फ़बारी में कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते। प्रॉब्लम जो आई पहाड़ी इलाके में, इतनी बर्फ़ पड़ रही है, हेलीकॉप्टर का कोई वहाँ पर रोल नहीं है। और जो मशीनरी है जो बर्फ़ हटाने वाली है वो कारों की भरमार की वजह से उसे जगह नहीं मिल रही ऊपर जाने की। और जो स्टेप बाई स्टेप मशीनरी होती हैं वो भी उनका भी कोई ऐसे नहीं है कि बीच में ला कर दिया जाए। अब सिंगल पर्सन हर बंदा अपने तौर पर जो है वो उठाकर फावड़ा कस्सी उससे समेट रहा है और वो फेंक रहा है एक तरफ कि भाई किसी तरह बर्फ़ की जो मिकदार कम हो जाए। आज भी अभी तक की करंटली जो आज गालबन 9 जनवरी 2022 का दिन है, अभी भी कोई क्लियर जो है ना वो नहीं आई बात कि भाई अब बिल्कुल मामला क्लियर हो चुके हैं। अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में ये उसके बात को जी हम मोरल डाउन कर रहे हैं, नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप टीवी चैनल खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी खबरें नज़र आएंगी जिन्होंने लाइव दिखाया है। हो सकता है कि हम अपनी इस वीडियो में भी आपको छोटा सा क्लिप दिखा दें कि मरी की क्या सूरत हाल है, वो आगे चल के आप देख लेंगे। तो बात हो रही थी गवर्नमेंट की मरी के मसले को लेके क्या हिकमत अमली थी या क्या अब इक़दाम कर चुके हैं। उस्मान बुज़दार की अगर बात की जाए, वज़ीर आला साहब हैं, मस्त माहौल ते मिठे चौल, मीटिंग कर रहे हैं। जब इमरान खान की कॉल आ रही उन्हें हंगामी तौर पर मीटिंग छोड़ के गए हैं। अरे भाई पहले ही आप उठ के अपना दें। कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं जी वाह बहुत अच्छे, वेल डन, अप्रिशिएट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर को। फवाद चौधरी बादशाह बंदे हैं जी, उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है कि जी इसमें गवर्नमेंट नहीं आवाम की बेवकूफ़ी, आवाम का कसूर है। जी हम जब कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है तो भाई टूल टैक्स क्यों ले रहे हो, क्यों गाड़ियों को आगे जाने दे रहे हो? जब कैपेसिटी नहीं थी तो वहीं पर रोक देते, जैसे हमने पिछले साल कोरोना के दिनों में नहीं जाने दिया। जो लोग आते थे कोरोना के दिनों में कि भाई हमने जाना है घूमना फिरना है तो पाबंदी थी इकट्ठे होने पर। जो अब की दफ़ा कोई समझ ही नहीं आया क्या सिर पैर हुए मामले का। मुझे तो खुद कल परसों पता लगा जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जब लोगों की डेड बॉडीज़ की पिक्चर हमारे सामने गुजरी हैं। वो लम्हा मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, पर क्या करें बदकिस्मती, हम तो उनके हक़ में दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन है जो शेयर करूँगा, हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट मानते हैं कि उनकी नाकामी है, एक बहुत बड़ी नाकामी है, इसमें गवर्नमेंट बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। उसी की निस्बत हम अगर नहीं अपनी फ़ौज को देखते हैं, फ़ौज से जितना हुआ वो भी बीच में कदम ब कदम अपना साथ दे रही है और हमारी जितनी भी जो है वो मुश्किलात में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि हम तो यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हमें बाहर का माहौल का, सर्दी का, उधर बर्फ़बारी का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये जिन लोगों के साथ गुजर रही है ये उन्हें पता है। कह देने में और अपने ऊपर अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुख्तसरन बात ये है कि अब आइंदा अगर किसी दूसरी फैमिली जो ये देख रही है, वीडियो देख रही है, ये सब कुछ सुन रही है खबरें, वो अपने ज़हन नशीन कर लें कि पूरी की पूरी फैमिली तो कभी भी कहीं जाए ना, खुदा न खास्ता कोई भी हंगामी सूरत हाल हो सकती है। वो जी अपना एक पुलिस अफसर हैं अपना पिंडी के, वो कॉल मिला रहे हैं मरने से पहले ही कि भाई हमें कोई रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है, वो हमें कोई इमदाद मिल जाए, कोई अल्लाह खैर करे। तो सुबह पता लगता है जी उसका मोबाइल बंद जा रहा है, कॉल ही नहीं पिक हो रही। तो जब देखा तो जी हलाक है, ख़त्म,
फिनिश, गया, गुड बाय, टाटा बाय बाय। अब क्या बना, ज़िंदगी इतनी थी उसकी। कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, और ये जो भी सामीन देख रहे हैं, यार खुदा का खौफ करो। अगर हमारा इतना कमज़ोर ईमान हो चुका है कि हम बिस्तर से निकल के मस्जिद में नहीं जा सकते नमाज के लिए, कि 5 टाइम हमें बुलावा आता है कि भाई नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ भलाई की तरफ आओ, लेकिन हम क्या करते हैं वो हमें नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी, हमें शो बनानी है जी, हमें सेल्फियाँ लेनी है, हमें जाना है मरी, गए मरी, मर गए। अब क्या कहने को अच्छा लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला बस सब्र दे उनको जिनके लवाकिन मरे हैं। और भाई इसी तरह जो मरी जा रहे हो ना, तो अल्लाह के बुलावे मस्जिद भी जाया करो। नमाज़ पढ़ने के लिए तो हम हैं नहीं, घूमने फिरने के लिए हमें जितनी भी बर्फ़ के अंदर जी जाना पड़ जाए, पैसे लगाने पड़ जाएं, अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाएं, कि क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन हशर में कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और जी हम इतने जो है कनात पसंद है कि जी हम फुल बर्फ़बारी में ऐसे मौसमों में 5 टाइम की नमाज़ अदा करने की बजाय कारों में बंद होकर कलमा शहादत पता नहीं नसीब हुआ या नहीं हुआ। तो मौत की कई वजूहात बन चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ये मैसेज भी दूंगा कि बंद कमरे में या बंद कार में किस तरह मौत वाक़ई हो सकती है। एक 1.5 मिनट की गुफ्तगू होगी, अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उससे कुछ ना कुछ हासिल होगा। नहीं सुनोगे तो भाई अपना ही है, जानोगे तो समझोगे, जानोगे नहीं तो कैसे समझोगे। आते अपनी बात के ऊपर। कहीं पर भी अगर घर में हो, रूम में हो, कार में हो, या किसी भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बाहर की हवा नहीं आती हो, और जो हम बात करते हैं, हमारे जो अंदर से हवा निकलती है जिसे हम सांस कहते हैं, सांस की शक्ल में वो जो निकलती है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हार्मफुल है। एक तो सबसे बढ़कर ये कि हमें नज़र नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ मुंह से निकल रही है, नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही। दूसरा, इसकी कोई खुशबू नहीं है जैसे हम सूंघ के महसूस कर सकें भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा हो चुकी है, इसकी स्मेल नहीं है। तीसरा और सबसे अहम बात, इसका कोई रंग नहीं है, ये हमें नज़र भी नहीं आती, ना सूंघने से ना देखने से। ये ऐसा कातिल आलात है कि हमें चंद मिनटों नहीं चंद सेकंडों में ख़त्म कर सकती है। आपने देखा होगा घर में जब हीटर या कोई हम ऐसी चीज़ जलाते हैं कमरे के अंदर, जिससे ये देखा जाता है कि भाई अब कमरे के अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई है और हवा का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई अलमारी या छोटा सा जो बाहर की हवा आ जा नहीं रही, तो दम घुट जाता है, बिल्कुल सांस नहीं आता। तो उसकी भी एक वजह यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है और ऑक्सीजन जो है वो जल जल के ख़त्म हो चुकी है, जो हमने आग जला रखी थी, हीटर जला रखा था। तो याद रखें ऐसी चीज़ें ना जलाया करें जिससे मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ऑक्सीजन की कमी से ही दम घुटता है और बंदे की डेथ हो जाती है। जहाँ बैठा है बैठा रह जाता है, अगर सो रहा है तो सोता ही मर जाएगा। तो एक तो ये सोशल पैगाम था मेरा आप लोगों तक, आप भी सदका जारी समझ के ये चीज़ें एक दूसरे में शेयर किया करें। हमसे जितना होता है हम अपने तौर पे करते हैं। अब आपका भी हक है और आपका भी राइट्स है कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझें। बस आजकल हमारे नौजवान हैं, उनको इन चीज़ों में है ही नहीं, बस अपनी फेसबुक डाल रखी है, वो टिकटॉक एक आई हुई है ऐप, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं बहुत कम ही देखता हूँ। कभी टाइम नहीं गुजर रहा होता, टाइम ज़ाया करने के लिए देख लेता हूँ, वरना मैं टिकटॉक देखता ही नहीं। कोई काम की चीज़ बंदा देखता है, कोई नॉलेज की चीज़ लेता है। यूट्यूब है, उधर आप सर्च कर सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, हम जैसी चीज़ें भी, हम जैसे लोग भी, शाइनर लोग सर्च कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कुछ समझ सकते हो, चलो कुछ आपके इल्म में इजाफा ही होगा। पर नहीं, आपके तो ज़हनों पर मोहरें लगी हुई हैं वो कलंक की, कि आप कोई बैठा है फरहान दिल पाक यूट्यूब चैनल पे, कोई उसकी बात सुन के कोई ज़िंदगी में सुधार लें। पर हर किसी के नसीब में तो ये शर्फ हासिल नहीं है ना कि वो हासिल करे हम जैसे
अच्छे लोग तो आजकल नहीं मिलेंगे। खैर अल्लाह की ज़ात पे नाउम्मीद नहीं होते, अपने आप को अच्छा ही जानो ताकि आप बुराई के नज़दीक नहीं आएंगे। तो जी आज की गुफ्तगू हमारी टोटल मरी के इंसिडेंट को लेके थी कि मरी के अंदर जो बहुत ही जो ऐसा हुआ है वाक़या, बस मेरे पास तो लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बयान करूं उसके बारे में। यही कह सकते हैं कि हम सब मिलकर उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि अगर दोबारा अगले साल भी ऐसा कोई माहौल बने तो जी आप लोग गर्म कपड़े, कंबल, आपको याद होगा कि मैंने सर्दियों से रिलेटेड एक वीडियो डाली है इसी यूट्यूब चैनल पे अपने पे कि हमें सर्दियों के लिए इंतज़ाम कर लेना चाहिए। अगर आप 2 महीने पहले जाकर ये मेरी वीडियो देख लेते, वो तो मैंने छोटे से घर के मुतालिक की थी कि अपने घरों में रहने के लिए बच्चों को सेफ्टी के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है। इस वीडियो में नहीं, आपको पिछली इसी मेरे चैनल के अंदर आप बैक जाके देखें, सर्दियों से रिलेटेड वीडियो है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो अगर आपने वो देखा होता मरी जाने वाले हजरात से कह रहा हूँ, तो वो वहाँ पर भी जाते अपनी सेफ्टी करते, गर्म कंबल रखते, बड़े बड़े जूते लेते, क्योंकि फास्ट एड तौर पर अगर हम फंस जाते हैं तो बर्फ़ के ऊपर से चलते हुए अपने आप को सेफ्टी के इंतज़ाम पूरे रखते हैं। उनके लिए तो एक कार ही सेफ्टी थी, कार से निकलते तो ठंड से मर जाते हैं, तो कितनी देर तक कार ऑन करके रख सकते हैं? उसमें पेट्रोल ही ख़त्म हो गया होगा। जब तक कार ऑन है, गर्म है, हीटअप है तो चला रखी है। जैसे ही कार का डीजल पेट्रोल ख़त्म हुआ, कार बंद, और बाहर निकलते हैं तो दरवाजे नहीं खुलते ठीक तरह से, इतनी बर्फ़ आ चुकी है। मुसलसल 15, 17, 18, 24, 35 घंटे तक बर्फ़बारी हो रही हो और आप आगे पीछे से मूवमेंट नहीं कर सकते, तो सोचें कि आपकी क्या हालत होगी। हमें तो सोचते हुए भी ज़रा दिल घबराता है। तो उनके साथ जो बीत रही है, अल्लाह ताला जो बाकी फंसे हुए हैं उनके हाल पे भी रहम फरमाए। और हमारी गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट भी अपने आप हालात सुधारे, आवाम के लिए अगर ऐसे इवेंट, ये ऐसे जो जगहें बना रखी हैं टूरिज़म के लिए, जो वैली हैं, पहाड़ इतने अच्छे वहाँ पर और बर्फ़बारी, तो उनके लिए कोई ऐसा आमदरफ़्त का रास्ता हो कि बराह रास्त आवाम को कोई तंगी ना हो। अगर कोई पैसे खर्च के जा रहा है बेचारा, अपनी जानों की बाजियाँ लगा रहे हैं। मेरे भी कुछ अजीज़ दोस्त हमसाए मोहल्लेदार बेचारे मरी में हैं, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ लेकिन मुझसे डिस्कनेक्ट हैं। अल्लाह उनकी भी जो है वो परेशानी दूर करें। जब बातचीत होगी तो देखेंगे भी वो गए थे, या जब वो आके हमसे मिलेंगे तो हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि यार वहाँ की क्या सूरत हाल थी। वो तो लाइव मनाज़र देख रहे हैं। उनकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने रूम वगैरह पहले से बुक करवा के वहाँ पर कुछ टूर के कुछ दिनों के लिए गए थे। वो भी वीडियो बनाते हैं, चैनल वगैरह है छोटे मोटे उनके। खैर आएंगे तो उनसे पूछेंगे। दूसरी ये है कि आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि आप कहीं भी जाएं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कहीं पर भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि मरी पहाड़ों पर ही मौत आए, मौत घर में भी आ सकती है, घर से बाहर भी आ सकती है। हमारा जो है वो ईमान है कि ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी हमें मिलती है ऐसे मौत बरहक है। हर इंसान ने, जानदार चीज़ ने मरना है एक दिन। पर हम यही चाहेंगे कि हम जब तक जी रहे हैं हम इस्लाम पे, हमारा ख़ात्मा भी इस्लाम पे हो और कलमे के साथ हो। और दूसरा ये कि हमें चाहिए कि अपने दीनी दुनियावी के साथ साथ दीनी मसाइल और मसले को समझें और उसके ऊपर चलें, तो हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ हैं। इस्लाम हमें बताता है बहुत से तरीक़ों में कि भी इस तरह चलो जिससे हम अपनी परेशानी से बच सकते हैं। आजकल बदकिस्मती से हम इन चीज़ों से महरूम हैं। तो जी आप लोगों के लिए ये एक ज़िंदा मिसाल है मरी का वाक़या। जो लोग पैसे वाले हैं और दोबारा ऐसी सोच रखते हैं, तो बहरहाल वही मैं दोबारा दोहराऊँगा बात कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखे करें। कुछ भी हो सकता है, आपको एक कार में 2 दिन बंद भी रहना पड़ सकता है। तो जी बस अब मैं मज़ीद अब क्या आपसे डिस्कस करूं, यही है कि आप लोग बस एहतियात किया करें, सारा मलबा गवर्नमेंट के ऊपर ना दिया करें, थोड़ा सा अपने आप को देखते हुए। तो इंशाल्लाह बस इसी बात से मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फरहान दिल पाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह